Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 8 SST chapter 5 when people reveal 1857 and after. My dear student, this is very interesting chapter. My last class, last two classes, we are reading this. Again, I am going to explain this. If you have remembered my previous classes where I discussed the various causes for the revolt 1857, and I told you not only one causes, not only सिपाही म्यूटनी कि केवल सिपाही म्यूटनी के चलते ये रिवोल्ट हुआ। इसके लिए आप देखिए तो मैंने इसके लिए कई सारे पॉइंट दिए। पॉलिसीज एंड द पीपुल्स, पॉलिसीज एंड द पॉलिसीज एंड द पीपुल। पॉलिसीज एंड द पीपुल पे अगर आप ध्यान दीजिए, दिस इज द फर्स्ट हेडिंग, ये पहली हेडिंग है आपके बुक में। तो अगर सॉरी पॉलिसीज ऑफ द पीपुल देखें तो कहता है इन द प्रीवियस चैप्टर यू लुक्ड एट द पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इफेक्ट दे हैड ऑन डिफरेंट पीपुल, किंग, क्वीन, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड and tribal soldiers who were affected। पॉलिसी से कौन कौन अफेक्टेड था? ब्रिटिश पॉलिसी से, इंपीरियल पॉलिसी, पॉलिसी मींस द इंपीरियल पॉलिसी, द ब्रिटिश पॉलिसी, और द कॉलोनियल पॉलिसीज कह सकते हैं। कौन कौन कहता है? किंग, क्वींस, कहता है उसके बाद राजाज, नवाब्स, फिर सेकेंड क्रम में कहता है जमींदार, बिग पीजेंट्स, फार्मर्स, फिर वर्कर्स, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, फिर किसको? सोल्जर्स, कॉमन पीपुल, एंड देन आफ्टर आर्टिसियंस, traders, Indian traders, directly or indirectly, these are all affected by the policies which was imposed by the colonial rulers. I mean to say that the British government. Dear student, एक चीज यहां पे क्लियर है। इफ यू विल सी दीज ग्रुप्स व्हाट आई एम डिस्कस, द किंग्स, क्वींस, राजाज, नवाब्स, जमींदार्स, बिग पीजेंट्स, फार्मर्स, वर्कर्स, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, सोल्जर्स, कॉमन पीपुल, आर्टिसियंस, इंडियन ट्रेडर्स, और यहां पे आप वर्कर्स भी लिख लीजिए, वर्कर्स। आई थिंक इफ यू विल सी दीज पॉइंट्स, नो वन
क्या हुआ कि कोई भी नहीं बचा इसमें से भारतीय समाज का वो वर्ग जो ब्रिटिश नीतियों से प्रभावित न हुआ। Even no doubt to say that the role of the soldiers that was very important. सोल्जर्स का रोल सबसे 1857 की रिवोल्ट में, इसीलिए इसको सिपाही रिवोल्ट कुछ लोगों ने कहा, सिपाही म्यूटिनी कहा। But as you know that in my last class I told you the feature of the revolt 1857, where I taught you that it was not only the Sipahi mutiny. Why? Because the huge amount of the common people, they also involve Major Harriet, who was the judge of the case of Mughal Emperor Bahadur Shah Jafar. He explained, he wrote that not only the some Rajas, Nawabs and kings, but also the numerous people, they involved himself in this revolt. This was not written by any Indians. This was not written by Hindu, Muslims or Sikhs writers. This was explained by the Britishers, British officials. So we can easily understand that every and each groups involved in this revolt 1857. If you will see one by one, the kings, queens, Raja, Nawab, Jamindar, big peasants, farmers, workers, Indian industrialists, and what? Indian industrialists, soldiers, common people, artisans, and imitators. You should ask me a question that, sir, how can you say that these all groups affected by the policies of the British rulers? Yes, this is the genuine question. You may ask, and I will give you an answer. As you know that, I think there is no need to explain that demand of the Rajas, Nawab and kings. Because the various time I told you that the different policies that was implemented by the British ruler time to time, कई सारी नीतियां, कई सारे प्रश्न, कई सारे सवाल जवाब जो ब्रिटिश रूलर के द्वारा लगाए गए, बनाए गए थे, तो कहता है कि ये जो चीजें थी राजाओं के हितों को प्रभावित कर रही थी. इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द राजास, किंग एंड नवाब्स. फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड यू अबाउट क्या कौन कौन से नियम, कौन कौन से कानून जिस पर मैंने बात की थी. आई टोल्ड यू कि वो नियम और कानून थे कौन कौन से. तो मैंने कहा था सब्सिडी अलायंस, वेयर यू नो दैट द वन रेजिडेंट अपॉइंटेड by the British Empire in the court of the local rulers. The whole sole authority that was transferred in the hand of president. And how strange that the local ruler had to pay their expenses. Even local rulers not control the resident, but he had to pay, उसे paid करना पड़ता था salaries. And second, what I am telling you, that is the very important things. Doctrine of lapse. Subsidy alliance, that was 1799, started by Lord Cornwallis. And as far as the matter of doctrine of lapse, 1846 to 1856. The time period of doctrine of lapse, if you will see, that was the particular date time. कब से कब तक कहता है कि वो टाइम था गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी 1849 announced after the death of Bahadur Shah Jafar
family of the king would shifted out the Red Fort. सीधे सीधे 1849 to 1856, the date of डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो डेट 1849 to 56 से क्लियर अनाउंस था डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कि इफ एनी रूलर्स हैव नो लीगल सन, लीगल सक्सेसर, सो किंग हैड नो राइट टू हायर द एनी सन एज देयर सक्सेसर. राजा को अधिकार नहीं था कि वो अपने सक्सेसर के रूप में किसी दूसरे बालक को गोद ले, हायर करे, एडॉप्ट करे. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्ट्रिक्टली स्टॉप देम, रोकता था उसको. तो यहां पे आपके लिए, आपके सामने एक बड़ा प्रश्न तो यही उठता है कि ये दो चीजें थी जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि किंग्स, क्वींस, राजाज एंड नवाब्स. अब दो चीजें मैंने बात की थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड सब्सिडियरी अलायंस. लेट अस कम टू डिस्कस दैट पॉइंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसके लिए? आप उन चीजों को देखिए कि अब राजा और नवाब पे आप कैसे इसको कनेक्ट करेंगे, पॉलिसीज कैसे इनको इफेक्ट करती थी. तो एज फार एज द मैटर ऑफ राजाज, you should think about that, the pensions of Nana Sahib. What happened with them? Nana Sahib was not the actual successor of Bajirao II. I mean to say that कि वो अपने पिता के एक्चुअल सक्सेसर नहीं थे, एडॉप्टेड थे, हायर्ड थे. सो दैट्स वाई ब्रिटिश गवर्नमेंट डिनाइड टू गिव देम पेंशन. एंड एज फार एज द मैटर ऑफ क्वींस, what happened in the case of Lakshmi Bai? Lakshmi Bai requested the various time to the Britishers that they permit to hire a son for their successor. But Britishers denied, Lord Dalhousie denied. And as far as matter of Nawabs, what happened with the Nawab of Awadh? Nawab of Awadh Awadh auctioned. नवाब was exiled. नवाब को निर्वासित कर दिया गया, अवध को ले लिया गया. When the Awadh was buffer state for the Britishers, Awadh was one of the very fruitful state, very obedient state for the Britishers. But what happened with them? So every and each king, queen, raja, nawabs and Mughal Samrat also. So, first line. Up second, you should ask me that how can Jamindar affected, big peasants affected, and the farmers affected? My dear student, if you have remember your previous chapter, last chapter, what we read there? We read there the land revenue settlements. हमने वहाँ पे लैंड सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ा. हमने आप वहाँ पे रैयतवारी, महालवारी और जमींदारी सिस्टम के बारे में पढ़ा. तो रैयतवारी, महालवारी और जमींदारी सिस्टम में क्या हुआ? एज आई टोल्ड यू दैट द रैयतवारी सिस्टम, इवन द अथॉरिटी गिवन इन द हैंड ऑफ द पीजेंट्स, बट पीजेंट्स हैव नो money, peasants have no infrastructure, so how can he plow their field? So it depends on the money lenders and exploitation started the door of money lenders. We have discussed a lot of that point, so today I will not discuss that. मैं इसको इस बात पे आज बात नहीं करूँगा कि किस तरीके से ये. And जमींदार, I told you in my last class that summary settlements and Inam Commission. Lord Dalhousie appointed a commission that is called Inam Commission. According to that, the different jamindaris that was inspected by the British officials. If jamindars had no authentic legal documents for the jamindaris, their jamindaris were auctioned. First point.
we have clear evidence, the summary settlements, in the 70,000 jamidaris that was inspected by the British officers during 1852 to 56, and among these more than 35,000 jamidari were auctioned in the absence of the legal documents. The all type of jamidars, they were kicked out from their jamidaris. First, so that's why jamidars were unsatisfied. Second point, in the jamindari settlements, the revenue rate was very high, and sometimes big peasants grow the different type of difficulties for the jamidars, and jamidar unable to pay the proper tax. जमींदार प्रॉपर टैक्स देने के लिए अनेबल था, और फिर वो क्या करता था, फिर वो इस जमींदारी को, उसकी जमींदारी सनसेट लॉ के थ्रू टाइम से पैसे टैक्स जमा न कर जा पाने के कारण ऑक्शन कर ले जाते थे। तो ये भी आपने देखा, एक पूरा स्ट्रक्चर से आपने पूरा एक चीजों को समझा। डियर स्टूडेंट, as far as the matter of jamidars and the peasants, big peasants and farmers, they were highly affected by the land settlements. So they were also unsatisfied. Third line, workers in the Indian industrialists, different type of the trade tax, excise duty was imposed by the Britishers on the Indian industrialists or Indian industry. Indian industry was deindustrialized during 18th century. Cotton industry was very famous, not only in India but also whole world, and Britain also. The cotton was high demanded things. But Britishers, they were taking the very discriminatory step on the Indian industry. They demoralized the Indian industry. What happened with weavers? You have read in your previous classes. जो वीवर्स थे, जो जुलाहे थे, जो बुनकर थे, उनको अपने हाथों की उंगलियों को कटवाना पड़ा। क्यों? क्योंकि इनका एक्सप्लॉयटेशन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वीवर्स अब काम करने के लिए जो कपड़े की बुनाई करते थे, जो कालीन बुनते थे, उन्होंने इसे मना कर दिया। तो एक पूरा का पूरा आपको यहां पे क्या दिखा है? एक गैप दिखा। भारतीय उद्योगों को पूरी तरीके से अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। सो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड वर्कर्स दे अफेक्टेड। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि कॉमन पीपुल एंड सोल्जर्स, इस पॉइंट को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। हम इसके बाद लास्ट पॉइंट आर्टिसियंस एंड इंडियन ट्रेडर्स। आर्टिसियंस, एज फार एज द मैटर ऑफ आर्टिसियंस इट मीन्स कि वो शिल्पी जो वस्तुओं का निर्माण करते थे, जो प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण रोल अदा करते थे। इफ इंडस्ट्री वॉर डिमोरलाइज्ड बाय द government of India, British government of India, how can you assume that the condition of artisans that were in very good form? If they had no money, what they would do? Artisans, they change their occupation and they return back for their fields, farming areas, farming land. How? It is the very interesting matter. ब्रिटेन में एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हुआ और किसान अपने खेतों को, अपनी जमीन को बेच के इंडस्ट्री की तरफ मूव किया। इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर वही समय था जब किसान अपने इंडस्ट्री को छोड़ करके खेतों की तरफ मूव कर रहा था। दैट वॉज द इकोनॉमिक क्राइसिस, दैट वॉज द कर्स फॉर आवर इंडियन इंडस्ट्री। यह अभिशाप था। ब्रिटिश इंपीरियल रूल वॉज कर्स फॉर इंडियन इंडस्ट्री
during 18th-19th century. The different type of excise duty was imposed. भारतीय वस्तुओं को विदेशों में बेचने के लिए उनके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी थी बढ़ा दी गई। भारत से सामानों को एक्सपोर्ट करने पे हाई अमाउंट एक्साइज ड्यूटी थोप दी गई। अब भारतीय वस्तुओं की कीमत, जब हाई अमाउंट एक्साइज ड्यूटी थोपी जाएगी तो वस्तुओं का मूल्य ऑलरेडी बढ़ जाएगा। विदेशों में इनकी कीमत ऊंची हो जाएगी। ये महंगे दरों पे विदेशों में बिकने लगेंगे। तो फिर क्या होगा? फिर इनकी मांग घटेगी, और जब इनकी मांग घटेगी तो डायरेक्टली किसको इफेक्ट करेगी? इंडियन इंडस्ट्रिस्ट को करेगी। आर्टिसियन प्रभावित होंगे, भारत का पूरा उद्योग नष्ट हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड थिंक अबाउट दैट। आपको इनके बारे में अगर आप एक वन बाय वन देखें। अब बात करते हैं सोल्जर्स। मोस्टली सोल्जर्स दे बिलोंग टू अवध। जो अवध के थे सोल्जर, अधिकतर संख्या में कहां से आते थे? अवध से आते थे। दे वर हायर क्लास हिंदू और मुस्लिम्स। दे वर मोस्टली ब्राह्मण्स और राजपूत्स और द खान और पठान। If Awadh affected, soldiers directly affected. और फिर सोल्जर्स के ऊपर जो सडन रिएक्शन के रूप में आया वो था कार्टिलेज, गाय और सुअर की चर्बी मिले कारतूसों का प्रयोग। इस गाय और सुअर की चर्बी मिले कारतूसों के प्रयोग ने पूरे ब्रिटिश आर्मी के इंडियंस को झकझोर दिया। I taught you a story of Mangal Pandey in your class, in your online class, if you remember. मैंने वहाँ पे आपको मंगल पांडे की स्टोरी को बताया था, जहाँ पे मैंने कहा था एक कूली ने मंगल पांडे से पानी मांगा तो मंगल पांडे ने कहा कि मैं तो ऊंची जाति का ब्राह्मण हूँ, मैं तुम्हें नीची जाति को पानी कैसे दे सकता हूँ, भाग जाओ यहाँ से। तो कूली ने कमेंट करते हुए, टोंट मारते हुए मंगल पांडे से कहा कि तुम्हें मुझे पानी पिलाने में बड़ी कष्ट हो रही है, कल जब तुम अपने दांतों से गाय और सुअर की चर्बी मिले कारतूसों को खींचोगे तब तुम्हें पता चलेगा। ये स्टेटमेंट मंगल पांडे ने सुना। अपने लेवल पे उसने इसकी जांच की और उसने पाया कि जो नई राइफल आई थी ब्राउन बैस की जगह रॉयल इनफील्ड राइफल के लिए जो मारक क्षमता में अधिक दूरी तक मार करती थी, इसके कारतूस में ग्रीस लगा हुआ पैकेट था, उसे दांतों से खींचना पड़ता था, और जो ग्रीस थे वो काऊ एंड पिग के कार्टिलेज से बने होते थे, और इससे हिंदू और मुस्लिमों के धर्म को सीधे सीधे नष्ट करने का प्रयास था ब्रिटिशर्स के द्वारा। और यही कारण था जिससे भारतीय सेना के अंदर, इंडियन आर्मी के अंदर, इंडियन जो सैनिक थे उनके अंदर क्या हुआ? अनसेटिस्फैक्शंस हो गए। और ये इतना तेज फैला कि धीरे धीरे इसने सभी महत्वपूर्ण केंद्रों पे, सभी महत्वपूर्ण आर्मी कैंटोनमेंट एरिया को अपने प्रभाव में ले लिया। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के सारे बड़े सैनिक संस्थान, आर्मी कैंटोनमेंट एरिया, दे वर अफेक्टेड। बंगाल में दमदम, बैरकपुर, बिहार में दानापुर, उत्तर प्रदेश में बरेली, मेरठ, लखनऊ, फैजाबाद। इसी तरह से छोटे छोटे अन्य संस्थानों पे के सैनिकों ने पूरी तरीके से इस व्यवस्था से अंग्रेजों के प्रभावित हुए। उन्होंने विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि सिपाहियों के द्वारा किया गया पहला विद्रोह नहीं था। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट रिवोल्ट। वाई? बिकॉज एज यू नो दैट द बैटल ऑफ बक्सर 1764 फर्स्ट टाइम, देन आफ्टर 1806 in Vellore
for religious things which was used by the British Indian, they were strictly prohibited. So that's why they became rebellion. Then after 1824, Assam, 1842, Sindh, 1849, 50, फिरोजपुर, गोविंदगढ़। तो तमाम सारी घटनाएं इसके पहले हो चुकी थी सैनिकों की। 1857 का रिवोल्ट तो सिर्फ एक कई दिनों से चली आ रही अनसेटिस्फेक्शन का कारण थी। वनली इट वाज रीजन। ये अनसेटिस्फेक्शन कैसे विस्तार रूप धारण किया, इनको अगर आप देखें तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। रिवोल्ट 1857 में हम लोगों ने बातें की थी पॉलिटिकल कॉजेस की, हम लोगों ने बातें की रिलीजियस कॉजेस की, हम लोगों ने बातें की कल्चरल एस्पेक्ट्स की, हम लोगों ने बातें की सोशल रिफॉर्म की, और हम लोगों ने बातें की सडन रिएक्शन की जो तुरंत हुआ। और ये सडन रिएक्शन सिपाही म्यूटिनी के रूप में आपके सामने दिखाई देता है। तो आई होप यू आर गेटिंग ऑन दैट। आप इन चीजों के आधार पे आप आसानी से उन बातों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। किस तरीके से इनका विकास हुआ, किस तरीके से इनका विस्तार हुआ। माय डियर स्टूडेंट, इफ यू विल रीड योर बुक, कहता है कि इन द प्रीवियस चैप्टर you looked at the policies of the East India Company and the effect they had on different people, king, queen, peasants, soldiers, landlord, tribal peoples were all affected in the different ways. You have also seen how people resist policies and the actions that harm their interest or go against their sentiments. One more thing which is very important, which I left here, the condition of tribal peoples. Tribal people की condition कैसी थी? If you have remembered the chapter, your chapter in your book, unfortunately, that is what? Reduced in your SST syllabus. The chapter name is Tribals, Dikus and the Vision of Golden Age. Tribals, Dikus and the Vision of Golden Age. Even I taught you this chapter. This chapter is giving us information about the exploitation of tribal people and how can he face the discriminative British rule in their area. The Forestry Act was imposed on them. They were kicked out from their native lands, jungles. अपने जंगलों से उन्हें निकाल दिया गया। और फिर the different type of rules that was imposed on them. I told you about the story of Birsa Munda, Sidhu Kanhu. How can they promote and provoke their own people to the against of? किसके लिए? अंग्रेजों के विरोध विद्रोह करने के लिए उन्होंने अपने लोगों को उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया। ट्राइबल्स ने पूरी लड़ाई लड़ी, एक लंबा संघर्ष चला ट्राइबल्स का ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट। 1899 तक उलुगान रिवोल्ट आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, भील विद्रोह, कोल विद्रोह, अहोम विद्रोह,
फराजी विद्रोह, और तो और फकीरों ने भी विरोध किया, सन्यासियों ने भी विद्रोह किया, सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह। तो एक लंबा रिवोल्ट आपको दिखता है, और इस रिवोल्ट के पीछे के तमाम सारे रीजन्स यही थे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे प्रभावित हो रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, बातें करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।